Assalamu alaikum, everyone, and I welcome you on the fourth session of Space Technology Rendezvous. And today we have a very special topic that sounds like mental health issues in youth and the impact of COVID 19. And we are very lucky that we have Brigadier retired Taj Iqbal Sahab with us. Sir, thank you for being with us and thank you for accepting our invitation. And Option. about Brigadier Taj, uh, he is a psychologist by profession, but for the last more than 40 years, he has been involved with the academics, with the psychologist, and if I call him a counselor, a friend, and a person who is helping out people uh, in this time and all the times when we have some troubles. And he has been associated with Institute of Space Technology, and we are proud to say that he is available all the time, and normally he says that he is available 24 by 7, and he has shared his phone number with each and every student and faculty members. And he uh, uh, we asked him to come for this session, and he has happily joined us. And for this session, this is very special session in the sense because for the last 6 months, especially from the January, but if we talk specifically the months, then by the end of March, we are passing through a very strange phenomena that has not been happened, I think, even not in the last 100 years. So this phenomena is affecting not our daily lives but also our mental health. And but during this whole phenomena, we have come to the point that we are moving towards a new normal. So today we will talk about the new normal, and we formally begin our talk with Brigadier Taj. So first of all, I'm really thankful to you for being with us for this 60-minute session. And to start with, I just want to tell you that we have audience from the Institute of Space Technology, the students, the alumni, the faculty, and we have audience who are linked with our students, alumni, and faculty, and they will join us with some time, or maybe if they are not available at this time, they will listen to this session afterward. Uh, Sir, on my request, I want that this session should be bilingual, so everyone should understand what are the problems and what are the solutions. So we will move with a very basic question that this COVID-19 that has arrived like 6 months back, is it affecting our lives or not? Doctor, thank you very much for inviting me to this discussion. And I'm grateful to IST also that it is trying to look after the mental health of the students and getting to them in the way that will certainly help them with studies and their daily lives also. As far as COVID is concerned, of course, it has a tremendous effect on our lives because the total lifestyle has changed, has undergone a change. I'll just give you one example that, for example, a student who is now with us, say in 6th or 7th semester, he has been practically away from his home during the daytime hours for the last about 13 or 14 years. That is, he started going to school at the age of 3 or 4, and then all the time he was busy with the friends during the daytime, and he had no time for the home. But now he has been suddenly confined to maybe his own room, or maybe a small home or a large home, whatever it is. But that certainly brings in the changes. So those are the changes which are affecting all of us. सर, ये जो बात है कि पहले जो स्टूडेंट्स थे वो घर में मतलब घर के लिए उनके पास टाइम कम होता था और अब घर में टाइम ज्यादा हो गया. सो व्हाट आई फील कि नाउ देयर इंटरेक्शन, द फिजिकल इंटरेक्शन दैट इज बार्ड बाय द सोशल डिस्टेंसिंग. और अब
ठीक है, द पीपल आर टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, ऑन Zoom और on any other applications like Skype or WhatsApp, whatever it is. लेकिन सर ये जो सोशल डिस्टेंसिंग हुई और ये जो फिजिकल डिस्टेंस कम हुआ और जो एक दूसरे से मिलना, देखना, बात करना था, सर इसका कोई हमारे जहनों पे असर होता है इस बात का? जी डॉक्टर साहब, इसका बिल्कुल असर होता है, क्योंकि आप देखें कि एक हमारा, जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि हमारा पर्सनल डिस्टेंस है, या आपने भी नोट किया होगा कि देयर इज अ डिस्टेंस के जिसके में अगर कोई आदमी आपके उससे ज्यादा करीब आए तो यू फील अनकंफर्टेबल, यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल दैट पर्सन इज टू क्लोज टू यू। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक आदमी थोड़ा सा डिस्टेंस आपसे परे हो जाए तो यू फील दैट ही हैज प्रोबब्ली रिजेक्टेड यू एंड ही इज गोइंग अवे। सो राइट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, ये फिनोमेना जो है ना, ये खासा स्वेयरली लोगों को इसने अफेक्ट किया है कि यू आर इन अ हैबिट ऑफ स्टेइंग क्लोज टू योर फ्रेंड्स राइट एट द फ्रिंज ऑफ योर पर्सनल डिस्टेंस, लेकिन उसके बाद एकदम से आपने कहा कि जी आप 2 मीटर से ज्यादा मेरे करीब नहीं आ सकते हो, और जैसे ही आप किसी के करीब जाने लगते हो वो पीछे हटना शुरू हो जाता है। ठीक है, दैट नेचुरली गिव्स यू अ स्ट्रेंज फीलिंग। तो ये तो हुआ है लोगों के साथ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम घरों को देखें तो घरों के अंदर जो डिस्टेंस पहले था वो अब कम हो गया है। सर अभी आपने एक लफ्ज जो है हमारे आम लोगों में, जो कि हम जब मेडिसिन से ताल्लुक नहीं रखते, एक दो लफ्ज यूज हो रहे होते हैं। एक होता है साइकोलॉजी और एक साइकेट्री, या साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने मुझे अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि जी आप साइकेट्रिस्ट नहीं हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो सर बहुत सारे लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता, तो ये आप हमें बताएंगे कि साइकोलॉजिस्ट की डोमेन कहाँ तक होती है और साइकेट्रिस्ट की डोमेन कहाँ पे होती है? डॉक्टर साहब, बेसिकली साइकेट्रिस्ट जो है ही इज प्राइमरीली MBBS डॉक्टर, ठीक है, who later on specializes in mental health or psychological diseases or mental diseases or disorders. उनमें स्पेशलाइज करता है तो he is called a psychiatrist. Whereas the study of the human beings, जो कि हम करते हैं, that is the area of psychology and that is the field of a psychologist. Psychologist जो है he doesn't prescribe you any kind of medicine and he cannot. Whereas the psychiatrist on the other hand, he can give you the treatments, लेकिन that is the medicines. लेकिन at the same time psychologist जो है ये आपके साथ psychological sessions में enter होता है, whereas the psychiatrist may not have the time for that. Some of the psychiatrists, they do have sessions with the people, but in Pakistan it is very rare. सर यहीं से एक सवाल कि साइकोलॉजिस्ट के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि जी हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे, वो तो हमसे बहुत सारी बस बातें करते रहे और उन्होंने कहा कि बस तुम ठीक हो जाओगे। सर ये बातें क्या असर करती हैं? डॉक्टर साहब, आप ये देखिए कि अगर मैं और आप हों और हम सुबह से किसी जगह पे बैठे रहें और देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड अस बट नोबडी टॉक्स टू अस, तो शाम तक आपकी क्या सूरत हाल होगी? ठीक है, शाम को नेचुरली यू वुड लाइक कि यार मेरे साथ भी कोई बात करे, ठीक है। और वो प्रोसेस जो है हमारे दिमाग के अंदर मुसलसल चलता रहता है। वी फील आइसोलेटेड, देयर आर इश्यूज जो हमें बग करते हैं, लेकिन वी कैन नॉट टॉक अबाउट दोज इश्यूज टू एनीबडी, ठीक है, वो हमारे अंदर रहते हैं, हम उसे इंटरनलाइज कर लेते हैं, ठीक। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि लोग हमसे किसी इशू के ऊपर बात करें, बट पीपल डोंट टॉक अबाउट दैट। एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो जब आपसे बातचीत करनी शुरू करता है तो ही ग्रेजुअली गेट्स इनटू दोज एरियाज के जहाँ पे उसे नजर आता है कि यहाँ पे देयर आर सम काइंड ऑफ ब्लॉक्स गोइंग ऑन, ये बंदा जो है इस इशू पे बात नहीं करना चाहता, मैं इसको कैसे इसके ऊपर लाऊंगा। और वो गिरहें जो है जब खुलनी शुरू हो जाती हैं तो people they solve their own problems. It is not the psychologist who solves your problem. It is the person who himself solves the problem. सर अभी आपने एक बात कही कि always there is a some bug or something is bugging us.
क्या ये सबके साथ होता है या चंद लोगों के साथ हो रहा होता है, या सबके साथ हो रहा है और वो मानते नहीं है? मानने की बात नहीं है डॉक्टर साहब, बात रियलाइजेशन की। देखें, प्रॉब्लम तो सबके साथ होते हैं, ठीक है। इवन अ स्मॉल लिटिल चाइल्ड हु इज गोइंग टू क्लास 2 और क्लास 3 और उसकी टीचर उसको अगर अटेंशन पे नहीं कर रही, तो प्रॉब्लम तो उस बच्चे के साथ भी होता है। द ओनली थिंग इज कि वो उसको आर्टिकुलेट नहीं कर सकते। इसी तरह से हम जब बड़ी उम्र में आ जाते हैं तो भी आर्टिकुलेशन इज अ प्रॉब्लम। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद अस, और हमें उसकी रियलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब वो हमारी नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट करने लग जाता है, तो उस वक्त फिर हम या हमारे इर्द गिर्द वाले जो हैं, दे फील कि दिस पर्सन नीड्स हेल्प, और आई माई सेल्फ माइट कम टू द कंक्लूजन कि मुझे को थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, एंड वी अप्रोच अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट एज द केस। अच्छा सर, आजकल जब हम छोटे हुआ करते थे, हमने कभी लफ्ज डिप्रेशन इस्तेमाल नहीं किया था, टेंशन जी इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि इवन टीनेजर्स टीनेजर्स ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि जी हमें बहुत टेंशन है, हमें डिप्रेशन हो रहा है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद शायद जैसे सोसाइटी में ये प्रॉब्लम बढ़ गया है या ये फैशन है कि टेंशन और डिप्रेशन का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो सर ये रियलिटी है या ये सिर्फ एक लफ्ज है कि जो हर जबान पे आ गया है? डॉक्टर साहब, ये डिप्रेशन बेसिकली इज अ रियलिटी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है जी। और डिप्रेशन में बाज़ सूरतों में, बल्कि बहुत सारी सूरतों में, वी डू नीड मेडिकेशन ऑल्सो, दैट इज के मेडिकल हेल्प की भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है इसमें। सर। लेकिन हमें जहन में ये रखना है कि ये एक आइसोलेटेड चीज़ नहीं होती है, इसके साथ कुछ इश्यूज रिलेटेड होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, हमें भी किसी दिन ये होता है कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ फॉर अबाउट से 1 आवर और सो, मेरा मूड के थोड़ा सा सेल्फ की तरफ चला जाता हूँ, नहीं दिल करता बात करने को। समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑल्सो, ठीक है। तो ये मूड्स की चेंज तो आती रहती है, लेकिन अगर यही मूड की चेंज जो है आपकी परसिस्ट कर जाए, दैट इज के आप सुबह से शाम तक एक ही सैडनेस के मूड में चले जा रहे हैं, कोई भी आपसे बात करता है तो आप जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ यू आर कॉन्स्टेंटली इन अनदर स्टेट के जी आप रोना शुरू कर देते हैं, या और इस किस्म की कोई चीज। तो ये जब मूड की सूरत इख्तियार कर लेते हैं आपके प्रॉब्लम्स, तो इसको हम कहते हैं कि जी नाउ द पर्सन इज गेटिंग इनटू डिप्रेशन, ठीक है। लेकिन डिप्रेशन और इसके साथ एक और चीज भी फिर आपको कंसिडर करनी पड़ती है, दैट इज एंजाइटी। सर। एंजाइटी, थोड़ी सी एंजाइटी जो है वो हम सबके लिए अच्छी होती है। a limited amount of anxiety in our lives, that is कि अगर मैंने परफॉर्म बेहतर करना है तो मुझे एंशियस होना पड़ेगा कि yes I need to perform well, ठीक है। हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, अगर वो हम जैसे कहते हैं कि बिल्कुल ठंड रखी हुई है उसने, तो उससे फिर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होते जब तक थोड़ी सी एंजाइटी नहीं आएगी। लेकिन वही एंजाइटी जो है जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो that starts leading you gradually towards the depressive side of moods. इसी तरह से जो moods की डिप्रेशन है, जब आप उस मूड में आ जाते हैं तो आपकी एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाती है। सो ये एक किस्म के इंटर रिलेटेड किस्म की चीज है। सही। और सर वो मेरा सवाल कि मतलब मैंने अपने बचपन में डिप्रेशन और एंजाइटी और टेंशन के लफ्ज बहुत कम सुने। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने मतलब लाइक मोर देन 40 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, आप बहुत सारे लोगों से मिले हैं, क्या ये लफ्ज और ये चीजें आजकल के माहौल की पैदावार है या ये पहले भी होता था और लोग इसको इन लफ्जों में बयान नहीं करते थे? ये क्या था सर? डॉक्टर साहब, पहले असल में हमारी जिंदगी में इतने इनपुट्स जो है ना, इंफॉर्मेशन इनपुट्स, वो इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब है। अभी फॉर एग्जांपल चाइल्ड इज एक्सपोज टू सो मेनी थिंग्स, और उसमें बहुत सारी चीजें बच्चे जो हैं वो वॉलंटियर भी करते हैं, लाइक गेमिंग और इस किस्म की चीजें जो हैं, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो अननोइंगली जो हैं उनको इम्पैक्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल द कांस्टेंट नॉइज इन लाइफ जो है हमारे वो बढ़ गया है, ठीक है। इसी तरह से
जो टेलीविजन और एट द सेम टाइम आपका कंप्यूटर चल रहा है, आपका मोबाइल बज रहा है, इसके सेम ये सारी चीजें जो है ना, ये हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें एंजाइटी और टेंशन और ये चीजें, स्ट्रेस जिसको कह लें आपके, वो बढ़ गई है हमारी लाइफ में। सर सर अभी आपने जिक्र किया इंफॉर्मेशन इनपुट का। अब दो ग्रुप्स हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ये मैं अगर कहूँ कि लास्ट 8 to 10 years में ये बहुत ज़्यादा आम हो गया। एक ग्रुप ऐसा है कि जो कहता है कि सोशल मीडिया इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वी नीड दैट इंफॉर्मेशन टू एक्सेल इन अवर लाइफ। लेकिन एक पूरे का पूरा ग्रुप है जो इसी पे बात करता है कि ये जो इंफॉर्मेशन फ्लो है या इंफॉर्मेशन इनपुट है, इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एंड इट इज लीडिंग टूवर्ड्स द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। आप सर इसको कैसे देखते हैं और इसका हल क्या है? डॉक्टर साहब, चीज ये है कि एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइड, इस पे तो हम सारे एग्री करते हैं। अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो मुझे नजर आता है वो है एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बेसिकली शुड बी एंड इट इज मेंट फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन ए टू पर्सन बी एंड वाइस वर्सा। लेकिन हमने इसे सोर्स बना लिया है जहाँ पे कि ये रात के 12 बजे भी हमारी लाइफ में आके तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसी तरह से और बहुत सारी चीजें जो हम बहुत एक्सेसिव यूज करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि क्वाइट सम टाइम बैक मैं बच्चों के एक ग्रुप को लेके आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स टू विजिट कपल ऑफ स्कूल्स बच्चों के इंटरेक्शन के लिए। तो वहाँ वी वर स्टेइंग विद डिफरेंट फैमिलीज। तो जिस फैमिली के साथ मैं ठहरा हुआ था फॉर 2 weeks टाइम, आई फाउंड आउट दैट दे नेवर स्विच्ड ऑन देयर टीवी। के घर में टीवी लगा हुआ था बट दे वुड नेवर स्विच इट ऑन। और कोई बंदा वहां पे घर में मोबाइल यूज नहीं कर रहा था, मेरे सामने किसी ने कोई किसी के साथ बात नहीं की है, ठीक है। दी मैसेज फोन आता था, दे वुड लुक एट द मैसेज, स्विच इट ऑफ एंड पुट इट बैक एंड दैट्स ऑल। लेकिन जब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ कि हर आदमी जो है उसने एक मोबाइल उठाया और उसके ऊपर वो टिक 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 सारा दिन चल रहा है वो, सो दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स। वी नीड टू educate ourselves and we need to be more mature about the use of social media. सर एक क्वेश्चन अभी हमारे किसी लिसनर ने और व्यूअर ने दिया है, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा सर, आप सुनिएगा। क्वेश्चन इज कि आई कांट हैंडल माय जॉब एंड लाइफ स्ट्रेस साइड बाय साइड, हाउ डू आई कूप? इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक ओनली सर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, I can't handle my job and life stress together. डॉक्टर साहब, इसमें चीज ये है कि why should we consider job and life as two separate entities? ठीक है ना? To exist in life, we got to do something. चाहे वो मैं घर के अंदर से कि मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घर के अंदर if I am supposed to cook everything, so that is my job that I am doing. So job is basically one part of our life. Why should we consider it separately from each other? ठीक है। अब ये है कि पास जॉब्स ऐसे होते हैं कि उनकी डिमांड्स कुछ इस तरह की होती हैं कि they impinge upon your social life or your normal family life जिसको हम कहते हैं। ये तो उसमें the only way out is कि चूंकि हम फैमिली में अकेले नहीं होते हैं, we have a spouse also, or if we are not married, we have parents, we have brothers and sisters living together. तो हम हर चीज जो है उसको हमें एक मेंटल कंपार्टमेंट में रखना पड़ता है कि दिस इज द कंपार्टमेंट फॉर माय जॉब, ठीक है, ये चीज मुझे करनी है, हर सूरत में करनी है, और अगर इसको मैं करता हूँ तो मुझे कौन कौन सी चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो ये एक प्रोसेस है एडजस्टमेंट का, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट जो है इसमें वी शुड नॉट ट्राई एंड कीप आवर जॉब आउटसाइड आवर लाइव्स, वी शुड मिक्स देम टुगेदर इन अ हेल्दी मैनर। सही। अच्छा सर, कोई फॉर्मूला, कोई तरीका ऐसा है, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि हम लोगों ने जॉब, अगर हम जॉब में जाते हैं तो हम जॉब में इतने ज़्यादा चले जाते हैं कि फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ जो है वो मुतासर होती है। आपने जैसे कहा
कि if you compartmentalize each subject then the things will be fine. सर कोई और तरीका, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल जिसको अपनी प्रॉब्लम की समझ नहीं आती वो इस प्रॉब्लम को यही नाम देता है. हाँ डॉक्टर साहब, इसका और तरीका सिर्फ यही है कि आपको जब भी टाइम मिले तो आप अपने जो नियर डियर वंस हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट करें, ठीक है. उनके साथ आप तमाम इनहिबिशंस को ख़त्म करके उनके साथ गपशप लगाएं, उनसे मिलें. यू गॉट अभी तो पाकिस्तान में 2 दिनों का वीकेंड हो गया है. इन 2 दिनों में यू कैन डू अ लॉट फॉर योर फैमिली एंड योर फैमिली कैन डू अ लॉट फॉर यू, ठीक है. आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो है मिल के घुल मिल के लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं. लेकिन अभी बाज़ ऐसे जॉब्स भी हैं कि जिनमें आपको से फॉर 6 months 3 months or a year maybe sometime you have to be away from your families. You just can't go back and even see them. लेकिन डिस्कनेक्ट तो आप फिर भी नहीं होते ना. तो डिस्कनेक्शन जो है आपका अपनी फैमिली से, दैट इज समवेयर अप हियर इन योर माइंड. तो ये मेंटल डिस्कनेक्शन जो है, दिस हैज टू बी अंडर आपको, और ये कॉन्शियसली करना पड़ता है. जबरदस्त जबरदस्त. सर एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है कि इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक डिसीजंस इन माय लाइफ, व्हाट शुड यू सजेस्ट? डिसीजन मेकिंग सर, ये जिंदगी में के मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ जगहों पे, आम जिंदगी में भी डिसीजन मेकिंग होती है और फिर जो लोग जॉब्स कर रहे हैं वहां पे भी डिसीजन मेकिंग होती है. लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग एक उनके लिए एक स्ट्रेसफुल फिनोमेना बन जाता है एंड दे कांट टेक अ डिसीजन. मतलब राइट और रॉन्ग तो बात की बात, दे कांट टेक अ डिसीजन. तो सर इसके लिए क्या तरीका है, हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, डिसीजन मेकिंग बेसिकली तो बाज़ लोगों की ये एबिलिटी बेहतर होती है. दे आर मोर डिसाइसिव इन देयर पर्सनैलिटीज. उनका पर्सनैलिटी मेकअप इस तरह से होता है कि दे आर मोर डिसाइसिव. बाज़ लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, बाज़ लोग डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर. तो बचपन से ही जैसे हमारी ग्रूमिंग होती है और कुछ हमारे अपने पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस जो है लाइफ में आ जाती है. And that ultimately affects your ability to make a decision. लेकिन प्रैक्टिस के साथ एक आदमी जो है he can learn to make decisions and good decisions. लेकिन उसमें जो चीज़ ज़रूरी होती है और जो चीज़ हमें रोकती है डिसीजन मेकिंग से, that is fear of the consequences. Exactly. मसलन अगर मुझ में ये एबिलिटी हो कि जी मैं कल को अगर कोई चीज़ समथिंग गोज रॉन्ग एंड आई कैन से कि हाँ ये मैंने किया था, ठीक है, तो आई विल हैव नो प्रॉब्लम विद मेकिंग अ डिसीजन. लेकिन कल को अगर मुझ में वो एक्सेप्टेंस की एबिलिटी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ये मेरी गलती थी, ठीक है, तो फिर ज़रा प्रॉब्लम हो जाता है इसमें. और इसके लिए एक आसान सा तरीका होता है कि जब भी कोई क्रूशियल डिसीजन आपने करना हो तो कंसल्ट द पीपल हु आर नियर यू डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इशू दैट इज इन्वॉल्व. बाद में फैमिली होती है, बाद में फ्रेंड्स को आप कंसल्ट करते हैं. Then take out some time, focus on to the problem, और फोकस करने के बाद उसके प्रोज और कॉन्स जो हैं आप उन्हें एक पेपर के ऊपर ले डाउन कर लीजिए, ठीक है. दैट कैन हेल्प यू टू सम एक्सटेंट, नॉट ऑल द वे, क्योंकि फाइनली तो आपने डिसीजन जो करना है वो फिर आपके दिल की बात होती है कि दिस इज टू बी डन, ठीक है. और आप उसके जो कुछ बाद में गलत हो सकता है उसके ऊपर आप कंसंट्रेट कर लीजिए कि क्या ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगा अगर ये गलत हो गया. अगर है, अगर एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, गो है. सही सही. अच्छा सर, कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हमें बिला वजह नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, वो चाहे अपनी जिंदगी से रिलेटेड हो, चाहे अपने बिलीफ से रिलेटेड हो, चाहे अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड हो. ये क्वेश्चन भी मुझे अभी आया है कहीं से कि समटाइम्स वी स्टार्ट डेवलपिंग नेगेटिव थॉट्स. जैसा टाइम मिला उसके अंदर हर चीज नेगेटिव पे जा रही है. वो रिलेशनशिप्स भी हैं, वो रिलीजियस बिलीफ्स भी हैं, वो आपका अपना लाइफ पैटर्न भी है. सर ये क्यों हो रहा है और इसका हल है कोई, या बस छोड़ दें और ये कभी पॉजिटिव हो जाएंगे? डॉक्टर साहब, अगर छोड़ देंगे तो फिर तो कोई चीज पॉजिटिव नहीं होगी. इसमें देखें, चीज ये है कि से किसी भी एक नेगेटिव थॉट को आप ले लीजिए, ठीक है ना.
नेगेटिव थॉट जो है आपका, दैट इज टेकिंग यू टू डिस्ट्रेस सिचुएशन। ठीक है, मसलन मैं ये सोचता हूँ कि वो फला आदमी जो है मेरे घर में से बाहर गया है, वो अभी तक वापस नहीं आया, कहीं कोई ऐसी बात नहीं हो गई हो। ठीक है, तो वो एक डिस्ट्रेस सिचुएशन के बारे में मैं सोच रहा हूँ। बेसिकली क्यों मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज उस इशू के साथ मेरे कुछ फियर्स और कुछ मेरी एक्सपेक्टेशंस अटैच्ड हैं। ठीक है, विच आर कॉजिंग मी द एंजाइटी। बेसिकली ये एंजाइटी का इशू होता है। ठीक है, व्हेन वी फील एंशियस अबाउट द थिंग्स, तो हमारी थिंकिंग जो है वो फिर फोकस हो जाती है टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड्स। ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए यही है कि वी गॉट टू फोकस ऑन टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स। एंड इट इज काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस, मेंटल प्रैक्टिस अगर आप करेंगे कि आप एंजाइटी को छोड़ दें, एक साइड पे कर दें और चीज को जैसे है उसी तरह से लें, तो फिर आदमी आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम कर जाता है। लेकिन देयर आर सिचुएशंस, देयर आर सम कनेक्शंस के जिनके बारे में यू आर ऑलवेज फीलिंग वेरी कंसर्न्ड। द मोर कंसर्न्ड यू आर, द मोर एंग्शियस यू आर। सर इसमें जो एक ये तो हो गया कि कुछ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, समटाइम्स आपको अपने बिलीफ्स के बारे में भी नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, उसका क्या हल है? डॉक्टर साहब, अब इसके बारे में तो आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड टू से एनीथिंग। ठीक है, नहीं सर, लेकिन इट इज अ मैंने मेंटल थिंग और इट इज रिलेटेड विद समथिंग एल्स। क्योंकि सर ये एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि आई हैव मतलब ही सेड कि आई हैव नेगेटिव थॉट्स अबाउट माय रिलीजियस बिलीफ्स। मतलब बड़ी एक अजीब सी चीज है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब बेसिकली देखिए, जो रिलीजन का इशू है, ठीक है ना, इसमें आपके जहन में डाउट तो आते हैं। हर आदमी की लाइफ में से ऐसी स्टेजेस गुजरती हैं कि जिनमें he starts doubting the things, and normally it happens with us when we try to learn something about something. ठीक है ना, मसलन एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एक एज होती है कि जिसमें हम हर उस चीज में 100% बिलीव करते हैं जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक स्टेज आती है when we start growing up, when we start doubting our parents। ठीक है, उनके जजमेंट्स को हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि उस वक्त हमारी फिर अपनी पर्सनैलिटी एक डेवलपमेंट में से गुजर के सॉलिडिफाई हो रही होती है, और उस स्टेज में जाके देन वी फाइंड आउट कि ओके दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, एंड माय पेरेंट्स दे वर नॉट डेमीगॉड्स और समथिंग लाइक दैट, दे वर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे आर ह्यूमन बीइंग्स लाइक मी। ठीक है, वो भी गलती कर सकते हैं, मैं भी गलती कर सकता हूँ। इसी तरह से रिलीजन के बारे में भी ये होता है कि जब आप इसको लर्न करना शुरू करते हैं तो आपके डाउट्स आते हैं। उसके लिए बेहतर यही है कि we should study more, we should talk to people who are enlightened। मैं वो बात नहीं करता हूँ कि डॉगमेटिक लोगों से, जो enlightened लोग हैं उनसे बात करें, आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। सर हम दोबारा उस वो यूथ वाले टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि असल में आपका जो सब्जेक्ट है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि लोगों के जो सवाल भी आ रहे हैं वो हमें कहीं से कहीं लेके चले जाएंगे। लेकिन हम उसके लिए कुछ और सेशंस रखेंगे, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं और जब वो मिल जाएं तो उनसे बहुत सारी बातें करने को दिल करता है। सर यूथ के ऊपर आते हैं और यूथ से हम जरा एकेडेमिया की तरफ आते हैं। इस कोविड-19 में एक बिल्कुल एक जो नया फिनोमेना आया वो एजुकेशन का था, जिसमें पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद हुए और उसके बाद एक ऑनलाइन सिस्टम डिफरेंट तरीकों से आया, क्योंकि ना तो टीचर्स इसके लिए ट्रेंड थे, ना स्टूडेंट ट्रेंड थे, ना ही टेक्नोलॉजी वैसी इस्टेब्लिश थी जैसी कि रिक्वायर्ड थी। लेकिन समहाउ द पीपल स्ट्राइव। टीचर्स ने अपनी जगह काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जगह काम किया, जो टेक्नोलॉजी थी उसने अपनी जगह पर जितनी जल्दी वो ग्रो कर सकती थी उतना ग्रो किया, और स्टूडेंट्स ने अपनी जगह पर काम किया, और ये एक प्रोसेस गुजरा। और अभी आज के लिए सारे सेशंस जो हैं, ये जो सेमेस्टर है या ये जो ईयर का काम था वो खत्म हो रहा है। लेकिन हमने देखा कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस का शिकार भी हुए। तो सर ये
चेंज की वजह से स्ट्रेस था या कोई और वजह थी इसकी? बेसिकली तो डॉक्टर साहब देखिए, जब ट्रांजिशन है ना जो हमारी क्लासरूम से ऑनलाइन, दैट इज द सर बेसिक इशू। ठीक है, उसमें जो हमारा टोटल एक पर्सपेक्टिव चेंज हो गया एजुकेशन के बारे में स्टूडेंट्स का। अभी हमारा ये होता है कि इफ वी कंसिडर द क्वेश्चन के व्हाई डू वी नीड अ क्लासरूम फॉर एजुकेशन, हम क्यों एक स्पेसिफिक स्ट्रेटिफाइड काइंड ऑफ माहौल हमें चाहिए होता है कि उसके अंदर रह के हम बच्चों को एजुकेट करते हैं कि यहाँ स्टूडेंट ने बैठना है, यहाँ टीचर ने बैठना है, और सर स्टूडेंट वहाँ बैठेगा छोटी क्लासेस में वेयर द टीचर टेल्स हिम और हर टू सिट। सर वो इसलिए कि एक फॉर्मलाइज हो जाती हैं चीजें। अभी होता ये है कि जब स्टूडेंट्स घरों में चले गए अपने, तो वो उस फॉर्मल सिचुएशन से निकल गए। जब वो फॉर्मल सिचुएशन से निकल गए उसमें से, तो उनके लिए उसके साथ अपने आप को लिंक करना जो है दैट बिकेम अ प्रॉब्लम। अभी अच्छी स्टडी के लिए और अच्छे रिजल्ट्स के लिए साइकोलॉजी में एक चीज एडवोकेट की जाती है कि आपने किसी चीज को भी अगर प्रिपेयर करना है तो उसको उसी माहौल में प्रिपेयर कीजिए जिसमें आपका एग्जामिनेशन होना है। बिल्कुल सर। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन आपका टेबल और चेयर पे बैठ के आपने करना है तो फिर आपको प्रेपरेशन भी उसी तरह करनी होगी। ठीक है, अभी हुआ ये है जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स आए, उसमें 2-3 फैक्टर्स मैंने देखे हैं बच्चों में। उसमें पहली चीज तो ये है कि चूंकि वो दूसरे बच्चों के साथ रिलेट नहीं कर सकते अपने आप को, क्योंकि जब हम क्लासरूम सिचुएशन में एक ग्रुप की सिचुएशन में होते हैं तो सिर्फ बातचीत में और टीचर के साथ बात करते हुए, क्वेश्चन पूछते हुए, आंसर्स देते हुए हम अपनी एक हायरार्की बना लेते हैं कि सो एंड सो इज बेटर देन मी एंड आई एम बेटर देन सो एंड सो। ठीक है, एक मेंटल अनकॉन्शियस हायरार्की होती है। अभी जब आप इस सिचुएशन में आए तो आपकी वो हायरार्की खत्म हो गई। ठीक है, यू डोंट नो कि आपका दूसरे मोहल्ले में रहने वाला स्टूडेंट जो है वो आपसे बेहतर प्रिपेयर कर रहा है या आप उससे बेहतर प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकंड वाज कि बच्चों ने ये शुरू कर दिया कि वो बिस्तर में लेटे हुए हैं और लैपटॉप लगा के वो लेक्चर भी सुन रहे हैं। सर अभी इस तरीके से जो है वो माहौल नहीं बनता जिसमें उन्होंने एग्जामिनेशन देना है। सो जब वो उसमें से निकलते हैं तो उनको पता लगता है कि हमने तो पढ़ाई कुछ नहीं है, ना हमें कुछ समझ आई है। अब प्रोसेस ये होना चाहिए, बच्चों को भी चाहिए एडवोकेट इज कि ठीक है आपका लेक्चर जो है वो लैपटॉप के ऊपर आ रहा है, बट द इशू इज दैट यू कांट आस्क क्वेश्चंस ऑन टू द लैपटॉप के जी टीचर से आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, क्लास में तो आप क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो व्हाट यू डू इज कि आप इम्पोर्टेंट चीजों के उसी तरह से बैठ के साथ नोट्स लेते रहें, despite the fact that you can go back again and listen it again and again and again, लेकिन आप अगर नोट साथ लेते जाएंगे तो आपकी थोड़ा बहुत ट्रांसफर फ्रॉम योर माइंड टू योर हैंड्स होता जाता है और आपकी लर्निंग जो है वो बेहतर हो जाती है। इसी तरह से हमने फिर ये शुरू कर दिया कि घर के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, अम्मी ने भी आवाज दे ली, अबू ने भी जो है वो कोई काम कह दिया, छोटा भाई कोई डिमांड लेके आ गया, तो ये डिस्ट्रैक्शन, दरवाजे पे कोई आ गया सर। जी हाँ बिल्कुल, बेल बजी आपको जाना पड़ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना मिल मिला के इन्होंने माहौल ऐसा कर दिया कि उसमें वो बच्चे जो है उनका फोकस खत्म हो गया। जी, अभी सर इसमें उसके कहीं लिए एक्सेप्टेंस का भी मसला है क्या? ऐसा नहीं है कि हमारे जो जहन है वो कुछ चीजों के आदी हो गए होते हैं? लेकिन हमने हमेशा एक क्लासरूम में पढ़ा जिसमें एक फिजिकल टीचर सामने होता था, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि लोगों के साथ कि जब वो एक चेंज आई तो वो एक स्ट्रेस का बायस बनी? जी बिल्कुल, ये भी है, क्योंकि जो ये चेंज जो है कि जी आपके सामने एक्चुअली टीचर नहीं है, बल्कि एक ऐसा टीचर है जिसको आप जब चाहें स्विच ऑन कर लें, जब चाहें स्विच ऑफ कर लें। है ना? ये मतलब अगर क्लासरूम में बच्चों को ये आज़ादी हो तो ये तो बहुत बड़ी अय्याशी है कि क्लासरूम के अंदर दे कैन स्विच ऑफ द टीचर, लेकिन दे कैन ओनली डू इट एट होम। लेकिन होम में करने का मसला ये हो जाता है कि फिर उनका फोकस खत्म हो जाता है उस चीज के ऊपर से। ठीक है,
जब अभी यही स्टडीज वाली जो जो है, चीज है, ये ऑनलाइन ऑनलाइन टीचिंग, तो अब तकरीबन ये सेशन खत्म हो गया। अल्लाह करे कि अगला सेमेस्टर और अगला वक्त जो है वो बहुत अच्छा है, तब दोबारा से हम उसी प्रीवियस नॉर्मल पे चले जाएं। लेकिन सर अभी आ रहे हैं एग्जाम्स, और जो लोग सोच रहे थे कि अच्छा ये पढ़ाई वढ़ाई तो ऐसी चली जाएगी, लेकिन एग्जाम्स के ऊपर अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की ऑनलाइन एग्जाम्स की पॉलिसीज आ रही हैं, और उसकी वजह से, और क्योंकि जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन में लोग वैसे ग्रैब नहीं कर सके नॉलेज जैसे कि फेस टू फेस होता है, उसकी वजह से मुझे लगता ये है, और कुछ स्टूडेंट से भी मेरी बात हुई कि स्टूडेंट्स अब इस एग्जाम की स्ट्रेस का भी शिकार हो रहे हैं। सर इसका हल क्या है? क्योंकि स्ट्रेस तो वैसे भी एग्जाम का स्ट्रेस हमेशा होता है, हमें आज भी कोई इम्तिहान देना हो तो स्ट्रेस तो है। अच्छा, इस ऑनलाइन क्योंकि ये बिल्कुल अननोन है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है, इसका स्ट्रेस मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा है। इसका सर हल क्या है, कैसे इसको नलिफाई किया जाए? डॉक्टर साहब चीज ये कि स्ट्रेस तो नंबर वन तो एग्जामिनेशन की होती है, हर बिल्कुल। नई सिचुएशन की हमें स्ट्रेस होती है, ठीक है। हम्म। और किसी हद तक स्ट्रेस जो है वो होनी भी चाहिए, बगैर हम्म। स्ट्रेस के हम रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है। बिल्कुल और सही। स्ट्रेस जो है वो हमें डेवलप करने में भी मदद देती है, हम्म। हमारी पर्सनैलिटीज डेवलप होती है, हमारी लाइफ डेवलप होती है स्ट्रेस की वजह से, लेकिन इसकी लिमिट्स होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे ये हमारी नॉर्मल लाइफ के साथ जिसकी इंटरफेरेंस शुरू हो जाए, वहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये एक कभी सिचुएशन जो है ये रेमेडी चाहती है इसकी, ठीक है। और उस रेमेडी के लिए जो चीज़ें हम कर सकते हैं उनमें ये है कि हमें अपने आप को ज़्यादा रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। मसलन हमें ये जानना चाहिए कि जी मुझे कौन सी चीज़ जो है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, कौन सी चीज़ से परे रहना है, ठीक है। अभी मसलन हमारे होता ये है कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ एक चीज़ को सुनने के बाद, जिस वक्त वो सुनते हैं तो कहते हैं मुझे सारा समझ आ गया, ठीक है। सही। लेकिन जब तक वो उसको रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे उस हम्म। वक्त तक वो चीज़ ट्रांसफर हो नहीं पाती उनके दिमागों में पूरी तरह से। हम्म। तो पहला स्टेप तो ये है कि बच्चों को जो वो सुने उसको रिड्यूस करें टू द राइटिंग, ताकि उनको पता चले कि कौन सी चीज उनको आती, कौन सी चीज नहीं आती, ठीक है। Right. फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन, हम जब छोटे होते थे तो कहते थे कि जी मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस यही चीज थी कि जब तक हम उसको करेंगे नहीं उस वक्त तक वो हमारे ग्रैस्प हम उसे पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। हम्म। एक दूसरी चीज ये है कि हम लोग जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसमें हम या तो लगातार बैठे पढ़ते चले जाएंगे हम्म। या हम बहुत लंबे गैप्स दे देंगे बीच में। नो, दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। हमारी पढ़ाई जो है उसको बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फॉर्म में चलना चाहिए जिसमें हमें क्लासरूम में रहना है, जिसमें हमें एग्जाम देने हैं। एक और चीज जो होती है वो ये है कि मैं अगर सुबह से बैठा हूँ और मैं सारा दिन एक ही से एबनॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़ रहा हूँ, दूसरे दिन मैंने सोशल साइकोलॉजी सारी उठा दी, ऐसे बात नहीं बनती है। हमें ये करना है कि जिस टाइम के ऊपर हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, next day preferably at the same time we should be going back to the same subject. That forms a pattern in your mind. उस पैटर्न से आपकी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, आपकी रिटेंशन बेहतर हो जाती है। राइट। सर मैंने भी कहीं पढ़ा, कहीं सुना था कि जो डिसिप्लिन है और जो चीज़ों को रेगुलेट करना है, वो बहुत सारी मेंटल स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। जैसे अभी आपने कहा कि जैसे आपने स्टडीज को कहा कि अगर एक वक्त में आप एक कर रहे हैं तो अगले दिन भी वो करें, और एक ही कंटिन्यूस ना करें, आप डिफरेंट करें। तो आपका क्या ख्याल है कि ये डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन इन लाइफ, इन एनीथिंग, डज इट हेल्प टू रिड्यूस द स्ट्रेस इन लाइफ? जी बिल्कुल, अगर आप अपने डिसिप्लिन लाइफ है आपकी तो आपकी जो स्ट्रेस है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपको जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी वो पता होती हैं कि व्हाट नेक्स्ट इज कमिंग, व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, इसके बाद मैंने करना क्या है, इसके बाद मैंने क्या करना है,
इसमें डॉक्टर साहब एक और चीज भी जो है वो ये है कि जब हम स्टडी कर रहे हो तो उसके बीच में छोटी ब्रेक्स जो हैं, से फॉर 10 और 15 मिनट्स ब्रेक, दैट इज ऑलवेज गुड फॉर लर्निंग। हमारे पास बच्चे जो हैं वो ये कहते हैं कि जी 6 घंटे कॉन्स्टेंटली बैठ के पढ़ रहे हैं, दैट डजंट हेल्प मच। 1 घंटा पढ़ें या 40 मिनट्स पढ़ें, 10 मिनट उसके बाद वो ब्रेक कर लें, उसके बाद वो फिर 40 मिनट्स लगा लें, लेकिन वो ब्रेक जो है दैट शुड बी फॉर रेस्ट, that should not be for picking up your mobile and playing games on that and things like that। उस चीज के लिए नहीं होती है वो, ठीक है। और फिर आपने अगर अपनी लाइफ को रेगुलेट करना है तो उसमें सारी चीजें शामिल होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके दोस्त हैं, अब अगर वो आपसे दूर हैं तो दैट डजंट मीन योर फ्रेंडशिप हैज कम टू एन एंड। आपकी अपनी पढ़ाई के दौरान में भी और उसके शाम के वक्त में भी you should get connected to your friends once again। थोड़ी बहुत गप लगा ली उनके साथ। You can do partying even on your mobiles एक दूसरे के साथ। Likewise, another issue is that of the exercise। अभी जब इस स्टेज में बच्चे पहुंचे, पहले तो चल के आते थे IST के गेट से लेके अंदर आना, पैदल चलना, इधर उधर जाना, it was quite something physical activity। फिर शाम को भी कुछ खेल लेते थे स्टूडेंट। अभी तो most of the students they are confined to their homes and they don't want to get out of their beds। तो इस सूरत में the exercise is a must। चाहे आप अपने कमरे के अंदर ही करें, स्किप जंप करें, रोप स्केपिंग करें या इस किस्म की कोई और चीज, या बाहर जाके आप वॉक करें या रनिंग करें। सो फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट पीरियड्स, स्टडी पीरियड्स, हर चीज जो है उसको आप अपने डिसिप्लिन के साथ एक कंपार्टमेंट में ले आए, चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी। जबरदस्त सर। एक सवाल है मेरे पास कि आई कांट कीप माय थॉट्स, विंस, लूजेस, लॉसेस एंड सीक्रेट्स टू माई सेल्फ, व्हाट शुड आई डू? मतलब कुछ लोगों में ये होता है कि वो कोई भी चीज है तो अपने तक नहीं रख सकते, दे वांट टू शेयर, और जब वो शेयर करते हैं तो समटाइम्स उन्हें वो रिस्पांस नहीं मिलता जो वो रिस्पांस चाह रहे होते। तो इसका क्या हल है? हाँ डॉक्टर साहब, इसमें जो आपने ये यूज किया ना वर्ड के वो रिस्पांस नहीं मिलता जो वो चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो इज इट सम काइंड ऑफ हेल्प सीकिंग और इमोशनल सपोर्ट दैट दे वांट, और इट इज समथिंग एल्स दैट इज टू बी सीन, ठीक है ना। हम अपनी चीजें अपने तक, देखिए हम वो चीजें जरूर अपने तक रखते हैं जिसमें an element of hurt or possible hurt or an element of embarrassment or possible embarrassment is involved। वो चीजें हम कभी बाहर शेयर नहीं करते हैं। हम शेयर वही चीजें करते हैं which we can afford to do, ठीक है। अब उसमें यह है कि हमें किसके साथ शेयर करनी है, किसके साथ शेयर नहीं करनी है, वो तो पर्सनल रिलेशन के ऊपर है। अगर मेरे और आपके पर्सनल रिलेशंस इतने क्लोज हैं कि वी ट्रस्ट ईच अदर, तो फिर तो चीजें शेयर होंगी। लेकिन अगर हम एक ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर सिचुएशन में हैं और वहां हम शेयर करते हैं, तो वो तो फिर अपनी अपनी इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा मेरी नजर में। सर एक क्वेश्चन ये है कि किसी ने हमसे ये पूछा है कि व्हाट इज सोशल एंजाइटी और सोशल एंजाइटी? सोशल एंजाइटी, ओके, सोशल एंजाइटी, ओके, ये क्या है और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, बेसिकली एंजाइटी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। उसमें पहली चीज होती है, उसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स आ जाती हैं। इसी तरह से वन ऑफ देम इज सोशल एंजाइटी। Social anxiety is that when I am placed in a new social situation or new social setup, तो उस टाइम के ऊपर उसमें एंटर होने से पहले जो है, जो स्ट्रेस मेरे ऊपर होती है या जो मेरे फियर्स होते हैं, क्योंकि एंजाइटी इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ फियर, ठीक है, क्या होगा। तो वो जो है दैट इज नोन एज सोशल एंजाइटी, व्हेन वी आर एप्रीहेंसिव ऑफ मीटिंग अदर्स, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं किसी, फॉर एग्जांपल से आई एम गोइंग इनटू
मैरिज पार्टी। सर तो मैं ड्रेसअप होने के बाद मैं जब जाने लगता हूँ तो वहाँ गेट के ऊपर पहुँच के तो मुझे होता है कि ये कहीं ये ना हो कि मैं स्लिप कर जाऊं, ठीक है, ये ना हो कि ये सामने जो फूल वगैरह लगे हुए हैं ये मेरे हाथ से गिर जाएं। सो दीज आर द काइंड्स के जिनके ऊपर हम अपने आप को फोकस कर लेते हैं कि वी मे नॉट कॉज एम्बेरसमेंट टू अदर्स, एंड सेकेंडली आई मे नॉट एम्बेरस माई सेल्फ। सो दैट इज द सोशल एंजाइटी। और सर इसको ओवरकम कैसे किया जाए? ओवरकम ऐसे किया जाए डॉक्टर साहब कि आप स्टेप बाय स्टेप लें हर चीज, ठीक है ना, कि अगर आपने किसी सोशल गैदरिंग में जाना है तो आप उस गैदरिंग के लिए अपने आप को पहले से मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू एंटर, ठीक है। उसके बाद ये है कि अंदर जाके मैंने क्या करना है वहां पे, ठीक है, और आप कंफर्टेबली स्टेप बाय स्टेप अपने आप को दूसरों के साथ शामिल करते जाएं। विद अ बिट ऑफ प्रैक्टिस बंदा ठीक हो जाता है ये सिलसिला जो है आपका। ठीक सर, एक क्वेश्चन और है कि हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कोशिश बहुत करते हैं, खासतौर पे कि स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट ये क्लेम करता है कि जी मैंने बहुत मेहनत की लेकिन ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, और जब ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे तो मैं स्ट्रेस का शिकार हो रहा हूँ, और उसके साथ साथ ही मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए। तो इस हालत में मैं अपने आप को कैसे नॉर्मल करूं? डॉक्टर साहब जहां तक देखिए फाइनेंसेस का इशू है तो मोस्ट ऑफ अस फेस दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। जो भी लोग अक्सर लोग जो है हमारी सोसाइटी में उनका ये इशू होता है, ठीक, लेकिन ये चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इस फेज में से आदमी गुजरता जाता है, टाइम पास हो जाता है। सो फाइनेंसेस अगर वन कैन मैनेज तो कोई इशू नहीं होता कि वन कैन कंटिन्यू दी स्टडीज, ठीक है, कोई हेल्प भी मिल जाती है कहीं से। जहां तक स्कॉलरशिप्स होती हैं सर। दूसरा जहां तक ग्रेड्स का इशू है कि जी मैंने बहुत मेहनत की और वो ग्रेड्स नहीं आए, तो वहां पे वन नीड्स टू review one's method of studying, method of examinations, कि मैं कैसे एक चीज को आंसर कैसे करता हूँ, ऑर्गेनाइज कैसे करता हूँ अपने नॉलेज को जो मेरे पास है। क्योंकि बच्चे वाकई बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो चीजें गड़बड़ होती हैं, कोई चीज कहीं से पिक की हुई, कोई चीज कहीं से पिक की हुई, तो या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ठीक नहीं होती है, उसमें प्रॉब्लम होता है। और मेन इशू उसमें आ जाता है फिर वही कि जी फोकस उनका जो है वो प्रॉपर नहीं है। सर हमारे साथ एक ग्रुप जो इस वक्त जो हमें सुन रहा है, उसमें से एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। उनमें से एक स्टूडेंट ने ये सवाल किया कि जी जब हम मैट्रिक एफएससी में होते हैं तो हमारा ज्यादा जो कंसर्न होता है वो ग्रेड लेने में होता है, लर्निंग में नहीं होता, और बाद में हमें जाके पता लगता है कि नहीं, वो जो लर्निंग थी दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द ग्रेड्स। तो ये जो एक डाइकोटमी आ जाती है या जो कॉन्फ्लिक्ट जहन में आ जाता है, इसका क्या हल है? डॉक्टर साहब मेरी नजर में लर्निंग और ग्रेड्स जो हैं ये तो इंटर रिलेटेड चीज हैं। अगर देखें बेसिक तो आपकी लर्निंग है ना, अगर आपकी लर्निंग जो है वो अच्छी है तो आपके ग्रेड्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ एसेंशियल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो वो तो आपको किसी वक्त भी धोखा दे जाते हैं। अगर टीचर क्लास सब जो क्वेश्चन उसने पोज किया आपको, उसकी अगर टीचर सिर्फ वर्डिंग चेंज कर देगा तो आप बॉक डाउन हो जाएंगे क्योंकि आपकी लर्निंग नहीं है, ठीक है। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आई वाज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी अपनी क्लास में, कि मैं अपनी टेक्स्ट की किताबें कम पढ़ता था और मैं लाइब्रेरी में टाइम ज़्यादा स्पेंड करता था। तो मुझे होश उस वक्त आई जाके जब हमारी डेट शीट आ गई एंड आई फाउंड कि जी हमारे तो वो नोट्स जितने हैं वो सारे टेबल की ड्रॉअर में पड़े हैं और मैंने तो कभी दोबारा पढ़े ही नहीं।
लेकिन फॉर्चुनेटली मैं जो किताबें पढ़ता रहा था, दोज हेल्प मी अंडरस्टैंड दोज नोट्स वेरी वेल। और उसने मेरे ग्रेड्स जो है वो इम्प्रूव किए यूनिवर्सिटी के अंदर। सो लर्निंग इज द बेसिक थिंग। अगर आपको, और फिर ये है कि ग्रेड्स के ऊपर आपको जॉब नहीं मिलती, ना ही जॉब की सक्सेस लेटर ऑन लाइफ में आपकी ग्रेड्स के ऊपर होती है। इट इज समथिंग एल्स। वो ये है कि आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड कितना अच्छी तरह से कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और जब अगर आपकी लर्निंग नहीं है तो फिर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेटर लाइफ में जो है ना, वो आपको धोखा देती रहती है। बिल्कुल सही सर। अभी इसी कोविड-19 का एक इफेक्ट जो स्टूडेंट्स पे हुआ वो ये था कि बहुत सारे लोग इस सितंबर अक्टूबर में उन्होंने बाहर जाने का प्लान किया हुआ था। दे वर प्लानिंग फॉर देयर मास्टर स्टडीज और पीएचडी स्टडीज, जो कि उन्होंने सितंबर में जाना था। लेकिन बहुत सारी जगहों पे सेमेस्टर डिले हो गया, कुछ जगहों पे फ्लाइट्स के इशू आ गए, और कुछ स्टूडेंट्स ने इस बात को बहुत अपने दिल पे लिया और इसमें वो बहुत परेशान हुए। सर, अगर ये सिचुएशन आ जाए, क्योंकि जिंदगी में ऐसी बेतहाशा सिचुएशंस आती हैं कि जब आप जो चाह रहे होते हैं वैसा नहीं होता, तो उस सूरत में किसी भी इंडिविजुअल को कैसे मतलब इसका मुकाबला कैसे करना चाहिए? हाँ डॉक्टर साहब, इसके मुकाबले के लिए तो हर आदमी की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। बाज लोग जो हैं चीज़ों को वो लाइफ एंड डेथ का मैटर बना लेते हैं, बाज लोग जो हैं वो उसको ब्रेवली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, एक चीज हो गई है तो वो आपने एक्सेप्ट तो करनी है हर सूरत में। उसकी एक्सेप्टेंस के अलावा आपके पास देयर इज नो अदर वे आउट। तो उसके बारे में आप सोचेंगे तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, आप अपने लिए एक मेंटल डिस्ट्रेस की सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यू शुड ग्रेजुअली ट्राई एंड कम आउट ऑफ इट एंड सी कि अगर ये होता ही नहीं तो मैं क्या कर रहा होता। ये भी तो हो सकती है ना सिचुएशन कि आपका एडमिशन ही ना हो पाए। अगर बाहर एडमिशन ही ना होता तो आप जाने का ना सोचते। आप अगर आप उस स्टेज तक पहुंचे हैं तो लेट अस टेक अ स्टेप बैक, गेट बैक टू द सेम सिचुएशन एंड थिंक जी ठीक है, नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटीज खुलेंगी तो अगेन आपकी क्लास जो है और आपकी एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो फिर भी दूसरों से तो पहले ही एलिजिबल होंगे उन यूनिवर्सिटीज के लिए। बिल्कुल सही। फॉर द सेम कोर्सेज द अपॉर्चुनिटी मे कम अगेन। सही सर, अभी इंशाल्लाह ये कोविड-19 की सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और हम उसी पुराने वाले नॉर्मल पर आ जाएंगे और सब चीज़ें इंशाल्लाह सब सही चलने लगेंगी। आपका क्या ख्याल है कि सर टीचर कितना बड़ा काउंसलर होता है किसी स्टूडेंट का, या किसी भी यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज में टीचर का क्या रोल है एज अ काउंसलर? वो चाहे उसका एकेडमिक काउंसलर हो या चाहे उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसका काउंसलर है। सो सर, टीचर का क्या रोल है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एट एनी टाइम? डॉक्टर साहब, टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट की लाइफ में। ठीक है, अगर हम वापस अपने बचपन की तरफ देखें तो एक दो टीचर्स के नाम अब भी हमारे जहन में आ जाते हैं जिनको हम भूल नहीं सकते। ठीक है, वो किस लिए? इसलिए कि हमारा और उनका एक स्पेशल रिलेशन था। एग्जैक्टली। अब टीचर जो है वो उसमें ये क्वालिटी होती है कि वो जब क्लास के ऊपर नजर डालता है तो इन द फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स ही कैन मेक आउट कि आज कौन सा बच्चा जो है ही और शी इज ऑफ कलर और कौन सा बच्चा जो है वो ठीक है। इफ द टीचर इज पेइंग अटेंशन टू दीज थिंग्स, अगर उसको बॉडी लैंग्वेज जो है बच्चों की वो समझ आती है तो वो उनके साथ क्लिक कर जाता है। और उसका एज अ काउंसलर बहुत बड़ा रोल होता है कि टीचर कैन ऑलवेज आस्क अ स्टूडेंट के बच्चे कल तो आप लास्ट वीक आपकी परफॉर्मेंस इसमें मेरे सब्जेक्ट में अच्छी थी, आज आप सही जवाब नहीं दे रहे हो चीज़ों के, व्हाट इज द इशू। वो थोड़ा सा एक पर्सनल टच वाली बात होती है। और मेरा ख्याल है कि टीचर को हर स्टूडेंट के साथ एक पर्सनल टच अपना बनाना पड़ता है।
क्योंकि देखें ना आप, मेरी नज़र में यह है कि जब हम क्लास में जाते हैं तो हम पूरी टाइम तोते की तरह तो बोलते नहीं रहते हैं। बीच में हमें कुछ स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करना पड़ता है कि क्लास की अटेंशन जो है वो प्रॉब्लम से निकल के थोड़ा सा एक लाइटर मूड में आ जाए, अटेंशन दूसरी तरफ चली जाए, कोई इशू जो है उसको फर्दर डिस्कस कर लिया जाए। तो उसके लिए यू गॉट टू नो द पीपल। ठीक है, मैं और अगर मेरा किसी ऐसे टीचर से पूछ बैठूं जो सुनने के मूड में ही ना हो, ठीक है, तो वो तो काम गलत हो जाएगा साहब। और सो सर मेरा ये टीचर ख्याल है कि यही जो फेस टू फेस टीचिंग है और यही जो इंटरेक्शन है, यही इस सिचुएशन में मिस होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अदरवाइज अगर ये कांटेक्ट और ये रिलेशनशिप डेवलप रहे तो चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। सर टीचर्स की बात हो गई, अब मैं चाहूंगा कि इसी सारी सूरत हाल में, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के, वो इस वक्त अपने घरों में हैं। घरों में पेरेंट्स का इस वक्त क्या रोल बनता है कि हाउ दे शुड ट्रीट देयर चिल्ड्रन इन दिस सिचुएशन, क्योंकि ये सिचुएशन पेरेंट्स के लिए भी नई आ गई है। क्योंकि पहले वो बच्चा या बच्ची वो कोई 8-10 घंटे घर से बाहर रहता था, लेकिन अब वो बच्चा जो है वो एक ऑड रूटीन के साथ उन्हीं के साथ है, और अब उसको पढ़ना भी है, उसके कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस भी हैं, फिर उसकी फिजिकल एक्सरसाइज मिसिंग है। इस सूरत में पेरेंट्स को क्या करना है? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है पेरेंट्स को टोटली नॉर्मल बिहेव करना है। ठीक है, किसी चीज के ऊपर दे शुड नॉट मेक इट एन इशू के जी तुम इस वक्त ये करो ही करो। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। दे शुड अवॉइड, क्योंकि अभी बच्चे जितने हमारे कॉलेज लेवल के हैं या हायर लेवल के हैं, दे आर बेसिकली नाउ ग्रोन अप्स। ठीक है, वो ग्रोन अप जो है अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जिसमें पेरेंट्स और बच्चे जो हैं एट द सेम टाइम दे आर प्रेजेंट इन द होम, एंड दे आर प्रेजेंट इन द होम फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम कांटेक्ट जो है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और इसके कुछ नेगेटिव कंसर्न्स भी आ जाते हैं। Negatives are to be avoided. That is, grown-up child should be given the right place in the family. Family के issues के अंदर, ठीक है? He should be treated as a grown-up जिस level तक के parents समझते हैं कि he is now grown up. ठीक है? वो बाज़ दफ़ा देखें ना, हमारे होता ये है कि बच्चा जो है वो अगर छोटा बच्चा जो है वो रो रहा है, तो मदर जो है वो बड़े बच्चे को कहती कि तुम इतने बड़े हो गए, इसको तुम लुक आफ्टर नहीं कर सकते। वन इशू। दूसरे टाइम में ये होता है कि वही बच्चा जो है अगर किसी बात में मशवरा दे देता है, तो वही माँ जो है वो कहती है कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि तुम दखल अंदाजी करो। नो, व्हाट इज द एक्चुअल रोल ऑफ द चाइल्ड, कि वो बड़ा हो गया है या नहीं बड़ा हुआ। तो इस किस्म के कंफ्यूजन्स जो हैं वो पेरेंट्स को रिमूव करनी चाहिए। ठीक है, और बच्चों को ट्रस्ट करना चाहिए कि दे कैन हैंडल देयर सिंपल अफेयर्स लाइक स्टडीज और इस किस्म की चीजें। वो सिर्फ हमारी जनरल सुपरविजन जो है दैट इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज ऑल। जबरदस्त। सर हमने जो आपसे 1 घंटा लिया था वो खत्म हो गया, लेकिन अभी हम आपसे 5-10 मिनट और लेंगे ताकि सर इन सारी चीज़ों को हम क्लोज कर सकें। हम बेसिकली सर जो नॉर्मल आजकल के प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको हम डिस्कस करते हुए उसमें हमने स्टूडेंट्स को भी देखा, पेरेंट्स को भी देखा, इंडिविजुअल्स को देखा, स्ट्रेस को देखा, और हमने कोशिश ये की कि आप हमें प्रॉब्लम के साथ उसका सोल्यूशन देते रहे, और वो आपने बहुत अच्छे सोल्यूशन दिए। सो फाइनली व्हाट आई बिलीव, और जैसे आपने कहा कि हम सबकी जिंदगियों में कभी ना कभी कहीं ना कोई मसला जरूर आता है, और जिसमें पेरेंट्स भी रोल प्ले करते हैं, टीचर्स भी रोल प्ले करते हैं उसको सॉल्व करने में। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हम में से कोई भी जब भी किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या फैकल्टी में हो, जब उसे प्रॉब्लम आ जाए तो एज एन इंडिविजुअल उसे उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ कैसे जाना है?
डॉक्टर साहब देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम हम फेस करते हैं सर, जब वो पहली दफा हम उसे रियलाइज करते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमें बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि दिस प्रॉब्लम इज ओवरवेलमिंग फॉर मी। उसके बाद एक और स्टेज आती है जब हम उसे कंटेम्पलेट करते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो उन कंपोनेंट्स में हमें कुछ थोड़ी बहुत रे ऑफ होप एक जगह पे दूसरी जगह पे नजर आती है कि हाँ इस तरह से इसको कुछ किया जा सकता है। ठीक है, देन वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड द सॉल्यूशंस कि इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या है। जब हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं तो एक्चुअली हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उस वक्त अराइज करना शुरू करते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम है मेरे सामने, मुझे पता है कि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, तो से कि देयर इज अ 9 फुट बॉल और मुझे कोई कहे कि इसके ऊपर तुम जंप लगा के चढ़ जाओ, तो आई नो आई कांट डू इट। सो आई शुड मेंटली एक्सेप्ट दिस थिंग कि ये चीज मेरे करने की नहीं है। ठीक है, तो जब आपके करने की नहीं है एंड यू मेंटली एक्सेप्ट इट, तो वो प्रॉब्लम जो है फिर अपनी जगह के ऊपर आपके लिए वो मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आप एक प्रॉब्लम को देखते हैं एंड यू हैव अ सॉल्यूशन इन योर माइंड कि हाँ इसको मैं इस तरह कर लूंगा। ठीक, तो फिर उस प्रॉब्लम को कंसिडर इट एज सॉल्व्ड कि वो प्रॉब्लम जो है आपकी लाइफ में वो सॉल्व हो गया है क्योंकि यू हैव अ सॉल्यूशन फॉर इट। ठीक है, व्हाई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो फिर बाज लोग इस आदत में चले जाते हैं कि उसी को वो रगड़ते रहते हैं। दैट इज अनदर थिंग व्हिच क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर अस। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप अगर प्रॉब्लम को लें और हर स्टेज के ऊपर इफ वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन, तो प्रॉब्लम्स दे सॉल्व्स देमसेल्व्स। एग्जैक्टली, यानी कि सर अगर हम प्रॉब्लम को डाइसेक्ट कर लें और प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें और अगर हर हिस्से का एक सोल्यूशन निकालने लगे, तो जब हमने सोल्यूशन निकाल लिया तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जबरदस्त सर, आपसे आज बातें करके कम से कम मेरी अपनी स्ट्रेस और अपनी टेंशन तो बहुत सारी खत्म हो गई। मुझे खुद बहुत सारी चीज़ों के सोल्यूशंस मिल गए और मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमारे साथ देख रहे थे, सुन रहे थे या जो बाद में सुनेंगे देखेंगे, उन्हें भी बहुत सारे सोल्यूशंस मिलेंगे। सर आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह जैसे आप IST में हर शख्स को हर वक्त टाइम देने के लिए तैयार होते हैं, आज भी आपने हमें टाइम दिया। सर ओवर टू यू, योर लास्ट कमेंट फॉर एवरीवन सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक्चुअली जो मेरी लाइफ का स्ट्रगल वाला पार्ट था वो गुजर चुका है। आई एम अ रिटायर्ड पर्सन नाउ। ठीक है, और जो कुछ मैंने लाइफ में लर्न किया है इस स्टेज के ऊपर, मेरी मेंटल सेट ये है कि आई एम रेडी टू गिव इट टू एनीबडी हु नीड्स इट। ठीक है, तो इसीलिए मैं IST के साथ भी इसीलिए मैंने कोऑपरेशन शुरू की कि आई फेल्ट कि आई कैन हेल्प से अगर मैं एक भी बच्चे को हेल्प कर लूँ, ठीक है, और उसको डिस्ट्रेस सिचुएशन से निकाल के नॉर्मल लाइफ में ले आऊँ, तो मेरे ख्याल में मेरी लाइफ जो है उसमें दैट वुड बी एन अचीवमेंट। ठीक, तो यही है कि इफ एनीबडी नीड्स एनी हेल्प एंड फील्स दैट आई कैन हेल्प, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड आई एम ग्रेटफुल टू IST कि ये इस चीज़ को फैलाने में थोड़ा सा मुझे हेल्प कर रहे हैं और बच्चों तक मुझे एक्सेस दी हुई है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। और सर आखिरी बात ये कि अगर इस सेशन के बाद हमें कोई फ़ोन्स आते हैं, कोई ईमेल्स आती हैं और लोग आपका ईमेल एड्रेस मांगते हैं या फ़ोन नंबर मांगते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए क्या हुक्म है सर? जी बिल्कुल, वो शेयर कर दीजिए सर। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दैट सर थैंक्स अ लॉट सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और जो लोग हमारे साथ इस स्पेस टेक्नोलॉजी ऑन द बुक के सेशन 4 में थे उनका बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सरताज के साथ या किसी और टॉपिक के साथ हम आप लोगों से फिर बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़ डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।